mensuration का topic we started mensuration ठीक है few days sorry एक minute wait a minute okay we started mensuration yesterday and we studied about the mensuration and what this topic is all about and we studied this in very detail. Now it's time to practice some past paper questions because you will experience these questions in your paper. For example, they say that the diagram shows a sector of a circle of radius r centimeter. The length of the arc PQ is 6.4. So arc length is this thing. This is arc length, okay? ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ that this line is PQ and this is arc. Okay, so this is arc length. This is known as the arc length of the sector. As we know that this sector is the part of what? It is the part of what? It is the part of circle. And we know that there must be some angle here, x. Now we know this that if that point is for example O, so O to P is 8, so O to Q is also 8 centimeter. And we know this that the arc length is the part of the circumference, right? So arc length formula is arc length is equals to theta divided by 360 multiplied by 2 pi r. ठीक है, इस पे रटा नहीं लगाना क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि आर्क लेंथ जो है ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस का हिस्सा है और ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है ये कल हमने सर्कल के बारे में पढ़ा है एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. समझ आ गई आपको? दैट इज इक्वल्स टू 2 pi r. अब ये जो जितना पीस पिज्जे का यहाँ पर पड़ा हुआ है इसका मतलब है कि दैट दिस पार्ट इज अ पार्ट ऑफ दैट सर्कल with a radius 8 centimeter. So the according to the question, our answer is given to me that this is 6.4 and theta, which is unknown to me, which is x degree divided by 360 multiply with 2 pi and r and the radius is 8 centimeter. So I want to make this x a subject. So we know that 360 is in division here, equal to के साइड पे डिवाइड हो रहा है तो वहां पे जाके होगा मल्टीप्लाई एंड 2 pi r 2 pi 8 इज इन मल्टीप्लिकेशन तो ये हो जाएगा यहाँ पे आकर डिवाइड. जरा कैलकुलेटर में डाल के बता दें कि जी इसका एंगल कितना आ रहा है. 6.4 डिवाइड टाइम्स 360. कैलकुलेटर बेटा अपने पास होने चाहिए आप लोगों के. अच्छा Sir, 45.83. okay, 6.4 multiplied by 360 multiplied with 2 shift pi times 8 and the answer is 45.83. So we take the angle as this is an angle, so x degree is equals to 45.8 degree. So now we got that what that angle is. So now we should know that how to find the area of the sector. So area of the sector means this is the part of the circle and how much part, that is 45.3 degree out of 360, and area of the circle हमने कल पढ़ा है, that is pi r square. So please use your calculator. That theta divided by 360, 45.3 divided by 360 times pi times r square, 8 square is 64. डायरेक्ट कर लिया मैंने. The answer is 25.3. So the area of the sector is 25.3. Noor, you just left it. So what I did in this question, I used the arc length formula to find out the angle, and then I put that angle in the area of the sector formula, right? And we specifically no need to ratta the formula, okay? That is theta by 360 means part divided by total times area because area of the sector, and here theta divided by 360 times circumference because it is the portion of a circumference. Agree? Is it clear, everybody? Is it clear? Yes, sir. Okay, good job. Okay, now the next question is calculate the area of the sector of a circle. Calculate the area of the sector of the circle with radius 65 millimeter and the sector angle is 42 degrees. So for example, we should draw what a sector is. Sector is a portion of a circle. So I'm just drawing it. So for example, this is the sector. According to the question, this radius is 65 millimeter. That is also 65 millimeter. Isa, this sector angle is 42. Okay, beta. Now they are asking us that what is the radii of the circle, but they ask they are asking us that they give your answer in square centimeter. So we'll find first in the millimeter, then we can convert it easily. Agree?
So area of sector, as we know that this sector is a part, ही हमेशा circle का part होता है, so it means that it is 42 out of 360 circle. Agree? Is this clear? So multiply with pi, and the value of r is what? 65 square. So use your calculator. So theta divided by 360, 42 out of 360 times pi times 65 square. So the answer is 1548.5. So that's the answer, but this is in millimeter square. Okay. Now they are asking us to give the answer into square centimeter, matlab centimeter square. So we should design the scale now. For example, we know that 1 centimeter is equals to 10 millimeters. Agree? So first of all, we need a square scale. So taking square on both sides. So 1 centimeter square is equals to 100 millimeter square. Right, Isa? According to the question, there are 1548.5 millimeter squares. So they are equals to x. So now cross multiply it. Just cross multiply it. Simple. So 1 multiplied by 1548.5 is the same thing. So 1548.5 is equals to 100x. So divide by 100 on both sides. So point will move 2 jumps towards left. So it would be 15.48 centimeter square. Is it clear, everybody? Is it clear? Any Yes, questions? sir. Beta Noor and Noor, any questions? आगे हमने बहुत कुछ करना है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अब मंडे से आप लोगों के एग्जाम्स हैं, तो आप लोग एटलीस्ट अपने पेपर्स जो हैं वो अच्छे अच्छे दे दें, ठीक है? ओके, look at the question please. The diagram shows a sector of the circle with center O, radius 8 centimeter, and the sector angle is 165. Okay, Hoor, better pay attention. Now this is a much bigger P. Yeah, I will repeat this topic. मेरे टॉपिक बार बार दो तीन दफा रिपीट होगा, डोंट वरी, ठीक है? ये तो इसलिए जरा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ कि एटलीस्ट पेपर में आप लोग कुछ ना कुछ कर लें. The diagram shows the sector of the circle with center O and radius is 8 centimeter. We can see that this is the radius. Okay. अब ये कुछ piece है, it's a piece of a pizza लेकिन थोड़ा बड़ा piece है. Agree? So this sector is how much sector? How much sector is this? It's a 165 by 360, right, Isa? Beta, if you can't talk, so kindly आप message करें, Isa. I know you're sick. Okay. So calculate the perimeter of the circle. I know that perimeter is the boundary of the circle, right, Mishal? So if this is 8 centimeter, that is also 8 centimeter, right? Yes, sir. अच्छा मिशाल, ऐसा है कि we need to find out the boundary. हमें ये boundary find out करनी है. Agree? जी, sir. Okay. इस boundary को find out करने के लिए we have the arc length formula. We know that this is arc length. Theta क्योंकि divided by 360 multiplied by 2 pi r. very good, जबरदस्त. So it is 165. Wait a minute, black color कर लें. 165 divide by 360 multiply with 2 pi r. We need to find out this thing. So r is 8. So जरा कैलकुलेटर करके बताएं कि क्या आ रहा है आंसर. बेटा सब बच्चे अपना अपना कैलकुलेटर यूज करा करें. अच्छा, जहाँ पे किसी को कैलकुलेटर यूज करना ना है, साथ साथ सीखना भी है ये भी. So the answer is 23.0. So answer is 23.0 means 23 लिख देंगे, ठीक है? Okay. So perimeter means sum of all sides, right, Hoor? Perimeter is the boundary of anything. So perimeter is boundary. So we know that 8 plus 8 plus 23. So 8 plus 8 is 16. 16 plus 23 is what? 39? Yes or no? So that is 39 centimeter is the boundary of this or the perimeter of the sector. Is it clear, everybody? Yes. Any questions so far? No, sir. Okay, now they say that the surface area of the sphere is the same as the area of the sector, but we don't know the area of this sector. So, Barira, can you please tell me that what would be the area of this sector? Formula, please. Sir, I guess it Come would on. be 165 divided by 360. Agree? multiplied by pi. R square. Yes, sir. Because it's a part of a circle. So that is the reason I use pi r square formula. Agree? और अभी थोड़ी देर पहले आपको मिशाल ने ये 2 पाई आर बताया था ना, यहाँ पे वो इसलिए सरकमफ्रेंस यूज किया था क्योंकि ये सर्कल का हिस्सा है, ठीक है? जरा कैलकुलेटर में पंच करें, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर?
165 divided by 360. 165 divided by 360 multiply with pi, and the value of r is 8, so 8 square, so the answer is 92.15, so I'll take 92.2. Okay, 92.2 centimeter square is the area of this sector, right? Hur and Noor, बेटा समझ आ गई है? बेटा समझ आ गई है? Okay. Okay, good job. They say that the surface area of the sphere is the same as the area of the sector. Calculate the radius of the sphere and the surface area of the sphere. The formula is given to us. That area is equals to 4 pi r cube. Sorry, 4 pi r square, because it's a square quantity. And area is same as the area of the sector, which is 92.2. So 92.2 is equals to 4 pi r square. Now we need to make r a subject of the equation. So हमने r को subject बनाना है. So divide by 4 pi on both sides. पहले 4 pi को divide करके वहां पे ले जाए. ठीक है जी, ये कटिंग हो गई. ये आ गया जी 92.2 डिवाइड बाय 4 पाई, एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर. अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आर हो गया जी आपका अकेला. जरा ये एक बच्चा जरा कैलकुलेटर में डाल ले. स्क्वायर रूट 92.2, स्क्वायर रूट 92.2 डिवाइड बाय 2.70. आर की वैल्यू क्या आ रही है? 2.70. 2.70 इज द वैल्यू ऑफ आर. अच्छा देखें कैलकुलेटर में डालते कितना कैसे हैं, आपको सामने स्क्रीन पे कैलकुलेटर नजर आ रहा होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यू हैव टू प्रेस द स्क्वायर रूट बटन, देन फ्रैक्शन बटन. ओके, दैट इज 92.2. ओके, डिनोमिनेटर में इट्स 4 पाई, एंड पाई का बटन आपको नजर आ रहा है एक्स 10 एक्स रो पे थर्ड थर्ड बटन जो है, लास्ट रो पे थर्ड बटन, द सेंटर वन. लेकिन ये आपको शिफ्ट दबा के दबाना पड़ेगा, तो यू विल गेट पाई दैट वे. इज इट इजी एवरीबॉडी? जस्ट प्रेस इक्वल, सो इट इज 2.708 आ रहा है. 708 आ रहा है, तो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं. सो इट वुड बी r इज इक्वल टू 2.71. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सर जी बेटा. सर क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन करा सकते हैं या फिर मैं वीडियो देख लूँ आपकी? बेटा ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली कराऊंगा, लेकिन कल मैंने ये पढ़ाया तो इसको आज पेपर इसके क्वेश्चन करने जरूरी हैं, ठीक है? ओके सर. क्योंकि फिर कल ट्रांसफॉर्मेशन में कराऊंगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है? ओके, इंशाल्लाह पेपर से पहले ही करा दूंगा. ओके, लुक एट द क्वेश्चन प्लीज. A cone is made from the sector by joining O to A and O to B. Calculate the radius of the cone. First of all एक चीज जरा समझ डालें कि रेडियस ऑफ द कोन कैसे बनी है. पहले जरा ये पीछे जरा बैक पे चले जाएं. ये पार्ट सी है, दिस इज एक्सटेंशन टू दिस पार्ट. ओके, नाउ आपको कल मैंने पढ़ाया था कि कोन जो है वो एक सेक्टर से बनती है. अगर ये फोल्ड होगी तो ये बन जाएगा इसका व्हाट, ये बन जाएगी एक कोन. इफ आई फोल्ड दिस सेक्टर, so it will become what, it will become what, it will become a cone. Agree? Yes or no? यस सर. Okay, now we know this already, that the arc length A to B is what? A to B is what? How much? We know this already. 20, 23. Yes or no? यस. It means that that is the boundary of the circle. Yes or no? Yes or no? यस सर. देखें बेटा, इस चीज को जरा सीख लें जरा थोड़ा सा. Whenever I fold this sector, ठीक है, so that part will go towards the base of the cone. Agree? And which is 23, which is what? Which is what? 23. Yes, this is 23. So circumference of the circle is equals to 2 pi r, as circumference of the circle is 23 here. So I need r, so divide by 2 pi on both sides. Dividing by 2 pi, so 2 pi cancel. So 23, 23, 23 divide by 2 pi, so shift and the pi button, so the answer is equal. So 3.66 is the radii of the cone. Agree? Agree? Okay. Now you should know that A to B, where that A to B gone. So let me show you another diagram, the extension of the question. We have 3.66 as a radii. हमने ये तो निकाल लिया. We know this that A to B is 8. Agree? A to B is 8. वहां पे नजर आ रहा है आपको कि ये 8 है तो ये भी 8 होगा. Yes or no? Yes or no? यस सर. Okay, Noor and Hoor beta, yes or no? Okay.
So we know that we got this, that how we found r. So r is 3.66, right, Isa? So we need to find out h, the height of the triangle. So calculate the radius of the circle. So we know that the circumference is equals to 23. वो हम लोगों ने उधर लिखा हुआ है, ठीक है, because that's in the boundary. And circumference of the circle is equals to pi r is equals to 23. So divide by 2 pi. तो ये अभी हम लोगों ने किया है, तो इसकी वर्किंग यहाँ पे देनी है, हमने वहां पे सॉल्व कर लिया था. So r is equals to 3.66. Okay, in the next part अभी हाइट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी. So we know this, that this is a right angle triangle, and we just studied trigonometry, that this is 8 and that is 3.66 and that is x. So hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. Agree? अब x को कर लें आप लोग सब्जेक्ट, कि ये हाइट ऑफ द कोन बाहर आ जाए. सो सब्जेक्ट करने का तरीका ये है कि 8 स्क्वायर माइनस 3.66 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि वहां पे x अकेला रह गया. सो स्क्वायर रूट 8 square minus 3.66 square is equals to 7.11. So height of the cone is 7.11. That's the height of the cone. Now they say that calculate the volume of the cone, matlab capacity of the cone, that how much liquid or how much ice cream it can hold. So volume of the cone is equals to 1 by 3 pi, and the value of r is what, 3.66. Most of the cases in exam you formulas are given, okay, so try to memorize the formulas, because sometimes examiner formula nahi deta. And height of the cone is 7.11 अभी हमने find किया. सबको कैलकुलेटर में पुट कर लें. It's 1 by 3, it's 1 by 3 times pi, shift pi, times 3.66 square times height is 7.11. So the volume of the cone is 99.7. And the question is in centimeter, so it is centimeter cube. Okay, और कल मैंने आपको बताया था कि 99.7 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 99.7 ml. Okay, is it clear? Is this clear, everybody? Yes. Because Yes. 1 liter of coke has 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम. अच्छा, ये याद रखना है बस, ठीक है. ये जनरल नॉलेज क्वेश्चंस हैं, ये पेपर में भी आते हैं और आगे भी आपको रियल लाइफ में भी काम आएंगे. ओके, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन कोन. कोन के ऊपर क्वेश्चन, थोड़े से आसान क्वेश्चंस मैंने आज निकाले हैं ताकि आप लोग पहले एक दफा ग्रिप ले लें इसको, ठीक है. नाउ दे से द कोन हैज अ रेडियस. ओके, पहले मैं जल्दी से कोन बनाता हूं, क्योंकि जब जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने कोन बनानी है, आपने वो शेप बनानी है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. ओके, कोन मैंने बना ली जल्दी से. कोन हैज अ रेडियस ऑफ 4.5, और हाजिम जो रेडियस है ना कोन का, वो यहाँ पर होता है. ओके बेटा. Yes, sir. ओके, एंड हाइट ऑफ द कोन जो है ना, वो ये स्ट्रेट लाइन है. इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? Yep. And that is in the question, that is 10.4. Agree? And in the volume we need only r and h. हमें slant l की जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसको find ही नहीं करते. Agree? So that would be 1 by 3 pi. R की value है it's 4.5 whole square and the height is 10.4. तो already मैंने कैलकुलेटर में यही प्लॉट किया हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें एडिटिंग कर देता हूँ. तो पाई के बाद का वैल्यू जो है ना, वो हम लोग निकालेंगे. पाई 4.5 स्क्वायर टाइम्स हाइट इज 10.4. इससे समझ आ रही है बेटा? यस और नो? इट इज 220 सेंटीमीटर क्यूब. सो 220.5 सेंटीमीटर, लेकिन कैमरे में 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है इसा, तो इट वुड बी 221. ठीक है. ओके बेटा, ये देखें जरा प्लीज. अ सॉलिड मेटल क्यूब. हूर, आई नीड योर अटेंशन. अच्छा, अ सॉलिड मेटल क्यूब, a solid metal cube of 20 सेंटीमीटर. अच्छा, जरा क्यूब क्या होता है पहले देखें. जब जब भी शेप नहीं है, मैं शेप बना रहा हूँ ताकि जरा आसानी से मुझे समझ आ जाए, ठीक है. दैट्स अ क्यूब. ओके, एंड इन क्यूब वी नो दैट इट इज द 3D फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर. एग्री? जैसे ही मैंने क्यूब का नाम लिया, तो मैं फौरन से जरा इसके फॉर्मूले लिख दूंगा ताकि मुझे याद आ जाए. वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6L², बिकॉज इसमें 6 स्क्वायर्स होते हैं. राइट मिशाल? लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, फ्रंट, बैक. Yes. ओके, अब देखते हैं कह रहा क्या है. 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है.
मतलब सारी साइडें 20 सेंटीमीटर होंगी। अच्छा, इसको मेल्ट किया है इन्होंने, मेल्ट किया है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम को मेल्ट किया होगा, यस और नो? एरिया को तो मेल्ट नहीं कर सकते ना, एग्री? और उससे 40 सॉलिड स्फीयर्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं? 40 सॉलिड स्फीयर्स बनाए हैं। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ईसा, नजर आ रहा है ना सामने? वॉल्यूम ऑफ क्यूब is equals to L cube, which is 20 cube. So 20 cube is equals to what? आप 20 लिख के ऊपर क्यूब डाल दें। 20 cube is equals to what? It's 8,000. So the answer is 8,000. It means that the 8,000 volume को हूर the volume of 8,000 is melted to make 40 solid spheres, and we know that the volume of the sphere is this formula. So that means that 8,000 is equals to 4 by 3 pi r cube. लेकिन wait a minute. Now there is a question that they made 40 solid spheres. So we have to divide by the 40. So 8,000 divide by 40. नूर, बेटा जरा आप अभी आई हैं तो जरा गौर करें बेटा। volume of the cube, Noor, right in front of you is 8,000. Okay, and they melted that volume to make 40 solid spheres. So it means that one sphere volume is equals to 8,000 divided by 40. So 0 0 cancel. So 800 divided by 4 is 200. 200 centimeter cube is the volume of one sphere, right, Hazim? जी। Okay, now they say that volume of a sphere with, okay, we need to find out the value of r. हमें उस हर sphere का एक radius find करना है। तो एक sphere का volume ले लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है, that 200, that is the volume, 4 by 3 pi r cube। अब r को बनाना है boss of the equation, ठीक है? We have to make r the subject of the equation. Okay, r को subject of the equation हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है? So what to do बेटा? फर्स्ट स्टेप में क्या करूं जी सब्जेक्ट बनाने के लिए? मिशाल, सर हम जो है तो 200 को इस साइड पे ले आएंगे, तो नहीं और उस नहीं साइड नहीं, पे। आप आर को उधर ही छोड़ दें। आप जरा देखें, आप जरा ये सब चीज नोट करें कि ये आर जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको उधर ही छोड़ें। आप 4/3 को यहाँ पे लेकर आए, पहले 3 को यहाँ पे लाएंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस और नो? यस यस और 4 पाई इज इन मल्टीप्लीकेशन, सो इट विल गो देयर एज अ डिवीजन, यस और नो? यस। सो हम लोग निकालेंगे पहले आर क्यूब इज इक्वल टू, पहले इसको कैलकुलेटर में कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे गन बन जाएगा बहुत ज्यादा। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 3 600 आता है। 600 डिवाइड बाय 4 पाई, छोटा मोटा मल्टीप्लिकेशन खुद कर लिया करेंगे, कैलकुलेटर में आसानी से डालें आप लोग। सर ये इट्स 40 कहाँ से आया? बेटा 40 किधर है? ये ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि इन्होंने वॉल्यूम को मेल्ट किया और 40 सॉलिड स्फीयर्स बनाए हैं, नजर आ रहा है ओके आपको? ओके, जी जी। ठीक है, एक एक क्यूब था 20 सेंटीमीटर का, उसका वॉल्यूम बनता है 8,000। इन्होंने क्या किया कि 8,000 को मेल्ट किया है और उससे छोटे छोटे 40 सॉलिड स्फीयर्स बना दिए हैं, एग्री? अब हमने उस यस हर स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है, तो एक का निकालना जरूरी था। तो दैट इज द रीजन मैंने ये निकाल दिया। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि क्यूब विल बी कैंसिल विद द क्यूब रूट, तो हम लोग लेंगे शिफ्ट दबा के, क्यूब रूट आ गया जी हमारे पास, और आंसर का बटन दबा दें। आंसर खुद ही कैलकुलेटर ने कोड कर दिया है, इक्वल दबाएं। सो द आंसर इज 3.62, तो 3.63, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर देने हैं। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इज इट क्लियर जी? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। गुड जॉब, गुड जॉब बरीरा। एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। श्योर? सर पेपर में होंगे। बेटा पेपर में तो देखें, अब फॉर श्योर आहिस्ता आहिस्ता आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो होगा ना। अब टॉपिक आप लोग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ओके जी, ये क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों के लिए निकाला है, ठीक है? ये अभी रिसेंट एग्जाम में आया था, ठीक है? तो काइंडली जरा देख लें इस क्वेश्चन को। ये रिसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, देखें जरा गौर करें। 2 मई जून 2022, मतलब अभी ही मई जून के पेपर में ये क्वेश्चन जो है पेपर में था। सो लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली।
Okay, the diagram shows a pentagon. Okay, it's a pentagon. Pentagon nazar aa raha hai ji hame. Okay, according to the diagram, all the lengths are in centimeters. Okay, ji, that's very good. Calculate the area of the pentagon. Okay, we need to find out the area of the pentagon. Okay, इसके लिए कोई इतनी लॉजिकल साइंस नहीं है. आपने एरिया ऑफ द पेंटागन का फॉर्मूला कोई हमारे पास होता नहीं है, हमें स्प्लिट करना है. So we have to split the shape into two shapes. We have to draw an imaginary line. Okay, एक ट्राइंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया. So ये रेक्टेंगल निकाल लेते हैं साइड पर, और इस साइड पे निकाल लेंगे ये छोटा सा ट्राइंगल. एग्री? इज इट क्लियर? दिस इज 4, so ये भी 4 होगा. ऑब्वियस सी बात है. So the total length is 12, so it means that this part is 8. Agree? Is it clear? Yes, sir. Okay, Hoor and Noor, you can see that if this is 4, so that must be 4 as well. That is the reason I wrote 4 there. And the remaining 12 minus 4 is 8, that will go there. Okay, this side is 15, so that must be also be 15, but this side is 9. This side is 9, so 15 minus 9 is what? It's 6, so that part would be 6. Agree? So area of the rectangle is equals to what? Area of the rectangle is equals to length multiplied by breadth. 15 times 4, that is equals to 60. And the question is in centimeters, so 6 centimeter square. And the area of the triangle is equals to what? 1 by 2 into base of height, base and height. So 6 times 8. So 8 6 are what? 48. 48 divided by 2 is 24. So add these two. 60 plus 24 is what? 84 centimeter square is the area of this pentagon. D. Noor and Hoor, do you understand this? Yes or no? बेटा, how to get a grip on mensuration? Mensuration में grip लेने का तरीका ये है कि at least you should practice at least 1 to 2 questions per day. तब जाके आपकी mensuration की grip होगी. Agree? And according to the date sheet, the beginner house students, they have the paper 2 on 19th of December. So it means that you have almost 2 weeks. And mensuration is the part of paper 2, not paper 1. Okay, because calculator allowed नहीं होता उसमें. Okay, the perimeter of the pentagon, it means that the boundary. सर हमें भी अलाउड नहीं है कैलकुलेटर नहीं P2 नहीं में? बेटा, नहीं नहीं बेटा, आप लोगों को अलाउड होता है. IGCSE स्टूडेंट्स को अलाउड है. Perimeter is the boundary of the pentagon, right? And we can see that, और हमें नजर आ रहा है नूर, that this side is only unknown. Agree? We need to find only this side, and this side belongs to this right angle triangle. Agree? Yes or no? So we have to find out this side first. So that is 6, sorry, that is 8, and this is 6. So that is h, which is hypotenuse. So h square is equals to 8 square plus 6 square. So h is equals to square root of 8 square plus 6 square. So h is equals to square root of 64 plus 36. So h is equals to 10. Because 64 plus 36, 10, and 100 after square root 100 is 10 centimeter. Now let's say perimeter. So we have technically everything in this pentagon. So perimeter is sum of all sides. So 12 plus 10 plus 4 plus, plus 9 plus 9 plus 4 and plus 15. So add everything. 10 plus 12 22. आपने horizontal addition ऐसे करते हैं दो दो करके. 9 plus 4 13 plus 15. Okay, 13 plus 15 is what? It's 18, and that is equals to 40 centimeter is the perimeter. Perimeter centimeter में भी होता है क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें कुछ ऐसा होता नहीं. Okay, volume of the sphere. A volume of a sphere is formula is given. A sphere has a volume. Okay, volume is also given. We need to find out the radius. It means that r को subject करना है. Agree? In this equation, volume is 2572, which is equals to 4 by 3 pi r cube. Okay, Hazim, how to make r a subject? Make it quick. Uh, Yes. What should I do now? R को अकेला करना है. R को उधर ही छोड़ दो. अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया है. हाँ सर 4/3 को 4/3 पाई को उधर ले जाएंगे. जी कैसे लेके जाएंगे बताएं. सर 2572. 2572 है सर, तो फिर सर उधर जाके 3/4 पाई आ जाएगा. वेरी गुड. 3/4 पाई. रिवर्स उल्टा कर दिया आपने खाली. जी ठीक है. इज इक्वल टू आर क्यू. ये जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको कैलकुलेटर में डाल लें और मुझे बता दें कि आंसर क्या आ रहा है. एंड टेक क्यूब रूट एज वेल. नूर बेटा इसका क्यूब रूट भी लेना. अच्छा
So r is equals to what? Cube root of the answer, please. It's a cube root, not a square root. So shift दबा के ऑन करके शिफ्ट दबा के क्यूब रूट दबाएं and 2572 times 3 divide by 4 pi. तो क्या आ रहा है बेटा आंसर? गलत हो गया सर, फिर करो। दोबारा दोबारा करें, सही तरीके से डालनी है वैल्यू। अच्छा, answer is 8.499. So the answer would be 8.50, right, Isa? जी 8.4995 8.50। Okay, ji. That's very good. So we are technically done with this question. So let's check that I have another question for you as well. I must have. Yeah, I do have another question. Okay, look at the question, please. Technically, the name of the shape is cuboid, and cuboid is a 3D form of a what? Of a cube. Of a rectangle. No, of a Rectangle. rectangle. Yes. अब जैसे ही मैंने क्यूबॉइड देखा, मैं इसके फॉर्मूले लिखूंगा सबसे पहले, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, मुझे याद करना है। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ, बिकॉज इसमें 6 रेक्टेंगल्स होते हैं। एग्री? Okay. Calculate the total surface area of the cuboid. It means that we have to use the which formula we have to use which formula. हमें इस फॉर्मूले को जो है इस्तेमाल करना है। Is it clear? Is this clear? Yes or no? यस सर। Yes. Okay. So total surface area, so 2 bracket bracket बड़ी सी लगानी पड़ेगी। Okay, because it's 22.5 times 6 plus base into height, so that is 6 times 2 bracket 1 plus 2 times 22.5 bracket close. So you have to put everything in the scientific calculator and tell me what is the answer. ब्रैकेट्स का ख्याल रखें ताकि आपका आंसर जो है ना वो गलत ना हुआ करे। मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर ज़रा ब्रैकेट यूज़ करता हूँ खुद ही कैलकुलेटर में, ताकि आप लोग इस चीज़ की गलती पेपर में ना करें। देखें, 2 ब्रैकेट, अब मैं डबल ब्रैकेट लगा दिया 22.5 मल्टीप्लाई बाय 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस प्लस का साइन लगाना जरूरी है, ये ना हो कि गलती से प्लस में लगाएं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22.5। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप 2 दफा ब्रैकेट, क्योंकि जो शुरू में ब्रैकेट लगाई थी उसको बंद भी करना है। 384 इज द आंसर। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट 384 एज एन आंसर? कितने बच्चों को 384 आंसर मिला था? सर मुझे मुझे सर। जी बेटा बरीरा, आपका भी 384 था? 382। 382? तो आपने कहाँ कहीं पे गलती की है फिर? तो बेटा गलती करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करूंगा। इसके बाद हम लोग मेंसुरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन राइट आफ्टर योर एग्जाम, ठीक है? तो अभी मैं जरा थोड़ा सा एक पेपर 1 सॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बेसिक मैथ्स है, और बेसिक मैथ्स जो है वो आपके पेपर का हिस्सा हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरा अटेंशन रखें यहाँ पे जरा। 4024 पास्ट पेपर्स, पास्ट पेपर ओपन कर लें। सबसे रिसेंट पेपर जो है 2022 के अवेलेबल है आप लोगों को, ठीक है? तो 2022 के जो पेपर्स हैं, आप लोग उन पेपर्स को खामखा प्रैक्टिस करें। दोनों वेरिएंट्स आपको नजर आ रहेंगे अभी स्क्रीन पे, 1 1, और देखें 1 2 एंड क्यूपी का मतलब है क्वेश्चन पेपर एंड एमएस का मतलब है मार्किंग स्कीम। तो 1 1 एंड 1 2 दो पेपर हैं। इस पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, ठीक है? लेकिन पेपर 2 के अंदर मिसाल ये वाले क्वेश्चन जो है पेपर 2 के अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़े डिफिकल्ट होंगे तभी कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है? Okay, sir. फॉर एग्जाम्पल ये पेपर मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने पेपर शायद कल ओपन भी किया था आप लोगों के सामने। क्या ये पेपर मैंने ओपन किया था? सर इन स्कूल इट्स अलाउड बेटा, नॉट अलाउड। मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता वहां पे भी। हाँ मुझे पता, तुम बड़े गवर्नर हो। ओके, सो वर्कआउट,
टू ऐड अ फ्रैक्शन, ये पेपर वन में कुछ इस किस्म के सवाल होते हैं. टू ऐड अ फ्रैक्शन वी नीड टू कंपेयर द डिनोमिनेटर्स, हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं. सो मल्टीप्लाई बाय टू, सो दैट्स हाउ वी कैन गेट इट 6. सो 4/6 प्लस 1/6, सो द आंसर इज 5/6. इज इट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं हम लोग. एनी कंफ्यूजन? No, sir. Okay, 0.4 multiplied by 0.2, it means that it's 4/10 multiplied by 2/10. मैंने decimal remove कर दिया. So now it is 8/100. So 8/100 means 0.08. Is it clear, Hoor and Noor? Any problem? Yes or no? Noor and Hoor? Well done. Okay, Asha asked a group of students about their favorite sports. The table and pictogram show some of the students. So there are 8 apples, and according to the key, they say that once complete circle, it represents 4 people. So there are 4 apples, 8 apples, so 1 and 2. Okay, there are three circles drawn in banana, so it means that there are 12. Yes or no? Because 4 plus 4 plus 4. Yes. Okay, 5 oranges. So oranges means this one and the half. अब इसका half भी बना लें sector. ठीक है? 5 oranges. जी ईसा. And there are how many melons? There are 4 plus 3. There are 7 melons. Complete the table and write down the mode. Okay, which fruit is repeated? कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है? मोड का होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. Banana. Banana. वेरी गुड. मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. Mode is the most. So banana is the fruit which is repeated a lot, 12 times. Right? नूर एंड हूर बेटा रिवाइज हो गया कि नहीं? ये आगे जाके स्टैट्स में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोगों का पेपर सर पे है आप लोगों के. अच्छा मेरी बात सुने नूर एंड हूर. नूर एंड हूर, अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को पेपर की तैयारी ना कराऊं और अपना कोर्स ही कंटिन्यू करूं, तो आप लोग मुझे बता दें. तो जो मेजोरिटी कहेगी हम लोग वो कर लेंगे. Should I continue the course or should I make you ready for the exam? Sir, make us ready for the exam. Okay, you said this. Okay, Isa, ready for the exam. Hoor, exam. Okay, चलें ठीक है जी. 3 बच्चों ने बोल दिया. बरीरा, what do you say? Sir, exam. Okay, चलें जी, बात खत्म हो गई. हाफ मेजोरिटी हो गई. नूर और हूर का एक ही वर्ड हो गया. ना ना, इंशाल्लाह पास 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 होगा यार. इंशाल्लाह फेल तुम नहीं होते हो, टेंशन नहीं लेनी. मेरा नाम तुम्हें ऐसा लगा, टेंशन नहीं लेनी. ओके, ए एंड बी आर वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. अच्छा जरा समझ डालने जरा. इट्स अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल अभी आप लोगों को पढ़ाया है मैंने कि 4 साइडेड फिगर को कहते हैं. ठीक है. लाइन एल इज द सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब है कि दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द शेप. ओके, जरा ज्वाइन करते हैं, जरा इसको देखते हैं क्या चीज है. ए टू बी. ओके, ए टू बी तो ज्वाइन हो गया. ओके, अब ये लाइन एल सिमेट्री है, तो इसका मतलब है कि हाफ जो है वो इधर होगा और हाफ इससे उस साइड पर होगा. यस और नो? सो इट मींस दैट ये हाफ इधर है ना, तो ये हाफ होगा इधर और यहाँ पे हाफ होगा यहाँ पर. So that's how we can make the quadrilateral. हमने quadrilateral बना लिया. Find out the coordinate of the other 2 vertices of the quadrilateral. So we got the 2 coordinates. This is point C and this is point D. हूर and नूर समझ आई है बेटा? Yes or no? The coordinates of C are 4 2. नजर आ रहा है? X is 4 and Y 2, and coordinates of D are 3 4. Any problem so far? Okay, thank you. Okay, work find the difference between these temperature. The temperature inside the Luke house is positive 18, and the temperature outside his house is -3. Oh my god, too much difference. Khair Baral. Difference maths in maths, the difference is minus. Okay, so difference between these temperatures. So 18 minus into -3. So minus minus plus. So 18 plus 3 is 21 degree का जो है ना फर्क है. Agree? Yes. Okay, now they say that Luke का जो thermometer है, it measures the temperature correct to the nearest degree. Nearest degree. Okay. At midnight, the temperature measure the temperature outside is -6 degree centigrade.
फाइंड द अपर बाउंड, मतलब अपर बाउंड और लोअर बाउंड किसे कहते हैं? जहां पे हम लोग डिग्री या किसी भी कैलकुलेशन को एक्यूरेसी तक लेके जाते हैं। एग्री? तो दिस पार्ट माइट बी एन एरर। तो नियरेस्ट डिग्री मींस यहाँ पे कोई 1 2 3 नहीं लिखा, तो नियरेस्ट डिग्री मींस 1 को करना होता है 2 पे डिवाइड, तो ये आ गया जी 0.5। अपर बाउंड मांग रहा है तो आपको 0.5 ऐड करना है, और अगर लोअर बाउंड मांग रहा होता है तो आप 0.5 माइनस करते इस केस में। सो -6 plus 0.5, so that would be -5.5. That is the maximum temperature it can be outside the temperature. Okay, जरा बेटा एक चीज को समझ डालें, हमारे पास बाज़ औक़ात एक्यूरेट आंसर्स होते हैं, बाज़ औक़ात हमारे पास आंसर होते हैं प्रेडिक्टेड। अब ऐसा है कि थर्मामीटर भी जो है ना एक खास एक्यूरेट नहीं आंसर देता। जैसे हमारे पास वी हैव सम एप्पल वॉचेस डिवाइसेस होती हैं, दे गिव अस हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर रिपोर्ट, बट दे इट डज हैज सम काइंड ऑफ एरर, और ये जो होती है दैट इज व्हाट लिमिट टू एक्यूरेसी। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस इज नियरेस्ट डिग्री मींस 1, बिकॉज नथिंग रिटन नियरेस्ट 5 डिग्री या 10 डिग्री नहीं लिखा, तो नियरेस्ट डिग्री लिखा है तो इसका मतलब है कि ये 1 है। सो दैट इज द रीजन मैंने इसको हाफ पे डिवाइड किया है। अगर ये अपर बाउंड है तो आपको आंसर के साथ ऐड करना है, और अगर लोअर बाउंड है तो आपने माइनस करना है। दैट इज द रीजन मैंने इसको प्लस किया है। जी समझ आ गए बेटा सबको? इज दिस क्लियर? Yes. थैंक यू। ओके जी, द स्केल ड्राइंग शोज द पोजीशन ऑफ टू विलेजेस ए एंड बी। ए एंड बी के दो विलेजेस हैं। द स्केल इज 1 सेंटीमीटर टू 2 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 किलोमीटर के। ओके, सो हमने क्या करना है? फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस। तो हमें रूलर के जरिए मेजर करना है। तो आपके सामने पेपर होगा, पेपर पे आप कीजिएगा। मैं तो ये अपना ये जो आईपैड वाला रूलर है ये रख लेता हूँ, क्योंकि लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि जितना मैं इसको जूम इन करता हूँ तो ये जो है लेंथ बड़ी हो जाती है, तो लिहाजा मैं इसको एक ही जगह पे रखूंगा ताकि ये लेंथ मेरा एक्यूरेट रहे। ठीक है, आप लोग ये पेपर निकाल सकते हैं खुद ही। सो अकॉर्डिंग टू माई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5, according to my scale on this iPad, I can see that this is 9.5 centimeter. Okay, and 1 centimeter represent 2 kilometers, so times 2, so 9.5 का डबल हो गया हमारे पास, it's 19 kilometers in original. Okay बेटा, is this clear? Okay, नाउ दे से दैट मेजर द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, तो ए पे आंख बनाएं और बी को देखें। फ्रॉम के बाद मैंने आपको बताया था, तो दैट्स अ क्लॉकवाइज आपने इसको करना है। तो पहले आप ऐसा कर लें कि इसको ज्वाइन कर लें ताकि एरर बिल्कुल ना आए। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब रूलर के जरिए मैं देख रहा हूँ कि ईसा ये एंगल, जो एंगल ए पे जो एंगल बनेगा ये एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है, तो मैं रूलर के जरिए करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया रूलर के जरिए रोटेट। तो मुझे 90 माइनस 17 करना है। तो 90 - 17 कितना आता है बेटा? 90 - 17 is 73 degree. So I have to write here 073 because bearing as a 3 digit हमने आपको पहले कल डिस्कशन की थी, राइट? एक बात बताओ मुझे मिशाल, अगर ये 73 डिग्रीज है तो मिशाल ये कितना होगा? ये वाला एंगल, एंगल बी कितना होगा ये वाला? अगर ये 70 तो ये 75 होगा आई गेस। नो बेटा, को इंटीरियर एंगल है पैरेलल लाइन का। ठीक है, सो 180 - 73 होता है 107। इज इट क्लियर? यस। मिसाल एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, बल्कि हूर अपना माइक ऑन करके बताओगे अच्छा कि व्हाट इज द बेरिंग ऑफ बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, फ्रॉम बी। सो माय आई इज ऑन नॉर्थ नाउ, सो हूर व्हाट वुड बी द बेरिंग क्लॉकवाइज एंड हिट ए? सर आई गेस 107 माइनस 73। बेटा आप जरा देखें, जरा समझ डालें। नाउ यू आर एट बी, आपकी आंख जो है वो बी के ऊपर है, नजर आ रही है आपको? जी। आपने ए को देखना है तो यू हैव टू टर्न क्लॉकवाइज, आपको क्लॉकवाइज घूमना है। ये एंगल है 360 minus 107. यस, सो 360 माइनस 107 इज व्हाट? 253. वेरी गुड, सो इट्स 253। समझ आ गई है बेटा? ये क्वेश्चन यहाँ पे था नहीं, लेकिन मैंने खुद ही कर दिया ताकि आसानी हो जाए।
अच्छा जी, कबीर इन्वेस्ट $250 इन अ सेविंग अकाउंट, अकाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 1.5%। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट को अंडरलाइन करें, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लें पहले ही, PRT डिवाइड बाय 100। ओके, अब पढ़ें क्वेश्चन। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट निकालना है, ही विल रिसीव, हमें टोटल वैल्यू नहीं निकालनी। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, प्रिंसिपल इज 250, rate is 1.5 and time is how much years, 4 years divided by 100। ओके, अभी हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, सो वी कैन डू वन मोर थिंग। ईसा ये जरा देखो बेटा कि 1.5 को आई कैन राइट 15/10, राइट? यस और नो? यस और नो? Yes, yes, sir. ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट, तो मैं ये भी कर, आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स है, आप ये भी कर सकते हैं कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें। आपके पास मैं मुझे ये टेक्निक नजर आती है कि डेसिमल हटा लेना चाहिए ताकि आसानी हो जाए। तो ये 250 अपनी जगह पर आ गया, 15 हम न्यूमरेटर की जगह पे लिख लेंगे और 10 जो है वो नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? 1 पॉइंट देखिए, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन कैसे इंसर्ट करते हैं, दैट हाउ कैन वी इंसर्ट अ फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन, के न्यूमरेटर को डाल दिया न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डाल दिया डिनोमिनेटर के साथ। इज इट क्लियर? यस सर। ये डिनोमिनेटर में मैंने गलती से 4 लिख दिया, इट्स 10। ओके, अब जरा चेक करें जी, एक जीरो काट लेते हैं इसके साथ। सो नाउ वी हैव दैट 25 into 4, 25, 15 fours are what? मल्टीप्लाई कर लें बस, 25 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 100, एक जीरो और काट लें। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 6 is 150 डिवाइड बाय 10, तो जीरो जीरो कैंसिल। सो इट मींस दैट द आंसर इज व्हाट? इट्स $15। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन, यू कैन यूज डिफरेंट टेक्निक्स। अच्छा, आपको इससे भी कोई आसान टेक्निक आती हो, आप वो अटेम्प्ट करें, ठीक है? हो सकता है कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय 4, आपको आपको पता है कि 1.4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है, वो ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन ये है ना कि ये स्टूडेंट स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन को लेके चले, ठीक है? जो टेक्निक आपको सूट करे वो करें। अच्छा देखें, अब ये क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो है ईसा, टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ द ट्राइंगल है 85 मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक इसमें मसला है, ये मिलीमीटर है वो सेंटीमीटर है और हमने आंसर देना है सेंटीमीटर में, वो हमसे शेडेड मांग रहा है। इसका मतलब है रेक्टेंगल माइनस ट्राइंगल करना पड़ेगा, लेकिन ट्राइंगल की एरिया को हम लोगों ने थोड़ा सा जरा चेक करना है, ठीक करना है। ये मिलीमीटर का स्केल है, आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। बार बार कराऊंगा बेटा ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। स्क्वायर ले लेंगे ताकि स्क्वायर का स्केल आ जाए। ये आ गया जी 100 millimeter square, that's the scale now. So I have 85 millimeter square which is equals to x, तो cross multiply कर लें। So 100x is equals to 85, so divide by 100, divide by 100, so 85 divided by 100 is 0.85 centimeter square, right Isa? तो shaded का मतलब है कि 9 minus answer, so 9 minus 0.85, so that would be 8.15। yes or no? समझ आ गई बेटा? इज इट क्लियर? गुड जॉब। चलें जी, ये देखें जी, पेंटागन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जरा पेंटागन, पेंटागन में कितना एंगल होता है टोटल, पहले टोटल एंगल का बता दें मुझे। ओके, टोटल एंगल ऑफ द पेंटागन कितना होगा? तो वी हैव दिस फॉर्मूला n-2, so it's 5, 5 minus 2 multiplied by 180, so 3 multiplied by 180 is equals to what? 540 बेटा। अच्छा इसा एक और शॉर्टकट बताता हूँ, जरा देखो पेंटागन में कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, जरा देखो। अच्छा, एक, एग्री, दो, कितने सर ये ट्राइंगल जो बन चुके? जरा देखो शॉर्टकट देखें जरा, कितने ट्राइंगल बन सकते हैं पेंटागन में? 3 बन सकते हैं ना? यस और नो? सर बेटा, ये 2 कहाँ से आया? बेटा 5 minus 2 n minus 2 multiplied by 180 is the formula for the interior angle, ये यहाँ से आया। ओके ओके। अच्छा अब जरा देखो, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। पेंटागन में हाउ, सर इट हैज 5, या इट हैज 5 साइड्स, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आई कैन मेक, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आई कैन मेक?
each side is not each angle is not 90. I can make, आपको एक शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, जरा बोर्ड ये देख लें व्हाइट बोर्ड के ऊपर सामने ही देखे जरा। एक शॉर्टकट तो ये है कि आपने जो भी शेप गिवन हो उसमें ट्राइंगल बना के देख लिया करो। तो देखो जरा, एक ट्राइंगल मेरे पास ये बन रहा है, 1 2, बस ओके। मेरे पास टेक्निकली 1 2 3 ट्राइंगल आ गए। तो 3 ट्राइंगल मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 180, ये आपके पास शॉर्टकट में आ गया है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू 540। ओके, सो ये शॉर्टकट है अगर आप फार्मूला नहीं भी यूज करते तो। और इसा ये बात गलत है कि सर इसमें 5 साइडें और हर एंगल 90 का होता है, तो ये इसमें कोई एंगल 90 का नहीं है। आपको नजर आ रहा है कि 95 110 125। सो 540 माइनस ऑल ऑफ देम, सो 540 माइनस ऑल, तो इन सबको प्लस करके 540 से निकालें तो आपको ए मिल जाएगा। इज दिस क्लियर ईसा? आपने निकाल लिया? अच्छा, इसे कह रहा है कि 145 आ रहा है, लेकिन आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना। अच्छा, यू कैन नॉट यूज द कैलकुलेटर। अगर कैलकुलेटर यूज करेंगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा और कैलकुलेटर अलाउड भी नहीं होता। ओके जी, पैटर्न्स की तरफ आ जाएं जी। पैटर्न नंबर 1 में 5, पैटर्न नंबर 2 में इट्स 8 एंड पैटर्न नंबर 3 में इट्स 11। सो +3 हो रहा है, यस और नो? सो 11 + 3 इज व्हाट? 14। 14 14 + 3 is what? 17 17. Okay, find an expression in terms of n for the number of counters. So the sequence is arithmetic. Arithmetic एक ऐसा sequence होता है जिसमें we can add, we can get a number by adding or subtracting something. So a1 is 5. 5 is the first term plus n minus 1. D is the difference. Difference is 3. 3 So 5 plus 3 n minus 3. So 3n plus 5 minus 3. So the answer is 3n plus 2. So here we can check the question as well. If I put 1 in the formula, you have to check, I'll get 5. So 3 सर ones are आपने 3 इस ब्रैकेट को plus 3 से 2. मल्टीप्लाई किया, राइट? लाइक जी पूरे जी, ब्रैकेट 3 डिफरेंस है ना, +3 आया ना आपके पास। जी जी, बस उसको मल्टीप्लाई। चलें बेटा, ये क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को भिजवा रहा हूँ। क्लास काफी लंबी हो गई है, रिकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा